پہن کے آئے, جنتی خوشبو لگا کے آئے, سرما لگا کے آئے. آپ کی پھوپھی چوچی کہ آمینہ کا بچہ آیا تو میں پانی اور بالٹی تولیہ لے کر کے صاف کر دوں, دوڑی دوڑی گئی, قدرت کی عاطفہ غیبی آئے, غیب سے آواز اس کو بولتے عاطفہ غیبی آئی, کہا او نبی کی پھوپھی کہاں چلی, کس کو پاک کرنے چلی؟ ارے آیا وہ نہیں ہے جو میلا کچیلا ہے, اب تو وہ آیا ہے جو سارے عالم کو پاک کرنے آیا ہے. ختنہ شدہ پیدا ہوئے, ناپ بریدہ پیدا ہوئے, یہ میرے نبی کی زندگی ہے. نبی لفظ نبی جب آئے تو نبی کی زندگی وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بستر پہ زمین پر سو جایا کرتے تھے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. ٹوٹی چٹائی پہ زندگی ہے. اچھا توجہ سے سنو میری بات, یہ بہت ضروری بات بتا رہا ہوں, آخری میرا درس لے لینا. یہ سمجھ لو کہ خدا کی قسم مرے دم تک اہل سنت پہ قائم رہو. ہاں, نبی کے عاشق بنے رہنا ہے نا. نبی کی زندگی اصل نبی کی زندگی کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. نبی کی زندگی یہ ہے کہ نبی ٹوٹی چٹائی پہ سو جایا کرتے تھے. نبی کی زندگی یہ ہے کہ نبی جو ہے اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. نبی کی جو ہے 11 ازواج تھے, سب کے حقوق نبی ادا کرتے تھے. ہاں, ہمارے نبی کی زندگی تو یہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ خود جھاڑو دے لیا کرتے تھے, وہ بکریاں چلایا کرتے تھے. ہمارے نبی تو یہ ہے کہ یہ سارا کام کاج کر لیا کرتے تھے. یہ میرے نبی کی زندگی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی زندگی ہے, میں کہتا ہوں یہ نبی کی زندگی نہیں, یہ ایک اچھے انسان کی زندگی ہے. یہ ایک اچھے انسان کی زندگی ہے. آپ بولیں گے نبی کی زندگی کیا ہے, توجہ ہے آپ کی, نبی کی زندگی کیا ہے؟ تو نبی کی زندگی سنانا چاہتے ہو تو کہو, نبی کی زندگی ہے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, یہ میرے نبی کی زندگی ہے. بتا دینا یہ میرے نبی کی زندگی ہے. انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا, یہ میرے نبی کی زندگی ہے. چادر کے 2 مردہ بچوں کو ہوا دے کے زندہ کر دینا, یہ میرے نبی کی زندگی ہے. کھارے پوئے کے اندر اپنا لعاب ڈال دینا اور وہ میٹھا ہو جانا, یہ نبی کی زندگی ہے. جن کے لیے آب و ہوا سلامی دینے آئے, یہ میرے نبی کی زندگی ہے. جب نبی کی زندگی اس طرح بتائی جائے تو لوگ کہیں گے ان کا نبی اتنا پاورفل ہے تو ان کا پروردگار کتنا پاورفل ہے. لیکن جب نبی کی زندگی ایسی بیان کریں گے کہ یہ جھاڑو مارتے تھے, یہ بکریاں, ارے بکریاں اس لیے چلائی کہ اپنی امت کو تعلیم مل جائے, اپنی بیویوں کے حقوق ادا کر کے اس لیے بتایا کہ میری امت کو سبق مل جائے. ٹوٹی روٹی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر اس لیے کھایا کہ میری غریب امت کو غربت کی زندگی کا علم ہو جائے. تو یہ ایک اچھے انسان کی زندگی ہے, نبی کی زندگی نہیں. نبی کی زندگی کیا ہے؟ نبی کی زندگی ڈوبے سورج کو پلٹا دینا. نبی کی زندگی آسمان پہ رہنے والے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. تو جب آپ کسی غیر قوم کے سامنے اپنا یہ میسج لے کر کے جاؤ گے, ان کے گاؤں میں جا کر کے کہو گے ہمارا اسلام قبول کر لو بھیا, ہمارا اسلام بڑا اچھا ہے, ہمارا اسلام بڑا اونچا ہے, ہمارا اسلام بڑا پاورفل ہے, ہمارا اسلام قبول کرو, تو وہ غیر مسلم بولیں گے ٹھیک ہے ہم تو قبول کرنے کے تیار ہیں, مگر اتنا اچھا خاصا ہمارا مذہب ہم چھوڑ کے آپ کے مذہب پہ کیوں آئے؟ بولے ہمارے مذہب میں اس لیے آئی کہ ہمارا نبی جھاڑو مارتا تھا, ہمارا نبی بیویوں کا خیال کرتا تھا, ہمارا نبی جو ہے وہ سوکھی روٹی کھاتا تھا, ہمارا نبی تو بڑا غریبی میں زندگی گزارتا تھا, کبھی کسی کو برا نہیں بولتا تھا. اگر آپ کسی غیر قوم کے سامنے یہ بتائیں گے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کوئی اسلام قبول کرے گا؟ کہے گا وہ تو ہمارے تو ایسے تھے, وہ ہوا میں اڑتے تھے, ہمارے تو ایسے تھے ایک ہاتھ میں دھرتی کو اٹھا لیتے تھے, سب بولیں گے. پھر تم اپنی نبی کی زندگی ایسی بیان کرو, کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. لیکن جب ایسے علاقے میں کوئی ٹناٹن سنی چلا جائے, رسول چلا جائے اور وہ اسی قوم کو کہے کہ کلمہ پڑھو, پوچھے ہمارا اتنا اچھا مذہب چھوڑ کے تمہارا کلمہ کیوں پڑھے, تو ہم کہیں گے اس لیے کہ وہ نبی ہے جہاں داری قبر میں چھوڑ کے طرح چلے جائے, قبر میں کام آنے والا ہمارا نبی ہے. قبر میں کام آنے والا نہیں, حشر میں بھی جو کام آنے والا ہے وہ ہمارا. تو جب جا کر کے وہ کہیں گے تمہارا نبی بہتل کہ زمین پر بھی کام آنے والا اور زمین میں بھی کام آنے والا, تو اس سے اچھا خدا اور اس سے اچھا نبی ہمیں کہیں نہیں مل سکتا. بڑا کلمہ مسلمان بولو.
दिया जाए? सुन लियो जम कर। अभी तो शुरुआत हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हम गुलाम रसूल हैं। ये देखो, ये बच्चा उठ के कह रहा खत्म भी कर दो, मैं जा रहा हूँ, ये कह रहे जा रहा हूँ। बोलो या रसूल अल्लाह, बच के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी आए तो बहारें आई, नबी आए तब कुरान मिला, नबी आए तो नमाज मिली, नबी आए तो किबला मिला। अरे जब तक नबी नहीं आए थे किबला कुछ और था, नबी आए खाने काबा किबला हो गया। अच्छा ये बता दूं, मिलाद मुस्तफा मनाने की बरकत क्या है? नबी पैदा हुए तो काबा झूम उठा, काबा झूम उठा और नबी के दर के सामने झुक पड़ा। जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लतावत पे लाखों। जो खाने काबा नबी की आमद पे झुका, नबी ने बड़े होकर के कहा तूने मेरे सामने झुक के एहसान किया, ले तेरा एहसान चुका रहा हूँ। क़यामत तक सारी इंसानियत, वो जो मुसलमान होकर कलमा पढ़कर खुदा को मानने वाले, सब तेरे सामने झुकते रहे। तेरे सामने एक बार झुका, सारी कायनात क़यामत तक तेरे सामने। नबी की अजमत तो ये है। तो बोला ऐसे नबी का मिलाद नहीं मनाना चाहिए? मनाना। अरे ऐसे नबी का मिलाद अगर नहीं मनाओगे तो किसका मिलाद मनाओगे? नहीं मान। सबसे ज्यादा हकदार तो यही नबी है। बल्कि सिर्फ मर्द तो मर्द है, औरतों को भी नबी का मिलाद मनाना चाहिए। हर बच्चे को नबी का मिलाद मनाना चाहिए, हर बच्ची को नबी का मिलाद मनाना चाहिए। क्योंकि नबी किसी मर्द और किसी एक फर्द के लिए नहीं, सारे आलम के लिए आए, सारे आलम के लिए। सरकार आए, बहारे आए। साहबा इकराम ने मिलाद मनाई थी कि नहीं मनाई थी? हमारे सामने बोलते मनाई थी बोल के, हर जगह बोलना नहीं थी। बिल्कुल मनाए थे। कैसे मनाए थे जान दो। एक वाकया सुना के गुफ्तगू को खत्म कर लेते हैं ताकि दलील भी मिल जाए और नबी का एहसान भी पता चल जाए। मुझे उम्मीद है कि आसपास बैठ के सुनने वाली घरों में मेरी माँ बहनें भी सुन रही हो। कान लगा करके गौर से आज की मिलाद की जलसी की तकरीर को सुन लेना, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में बैठे हुए, पीर का दिन है, रोजा रखे हुए। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, रोज फरमाया कहा मैं रोजे से का कई का रोजा? कहा मेरी विलादत का दिन है इसलिए रोजा रखे। कहा अच्छा या रसूलल्लाह इजाजत हो तो हम भी कुछ पढ़े आपके कसीदे, क्योंकि आज आपकी विलादत का दिन है, हम भी मिलाद पढ़ना चाहते हैं, आपका कसीदा पढ़ना चाहते हैं या रसूलल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है, अबू बकर, उमर, तलहा, जुबैर जितने बैठे हो चलो तुम्हें इजाजत है, पढ़ो मेरे कसीदे पढ़ो, क्या बताना चाहते हो बताओ। एक के बाद एक सहाबी मेरे रसूलुल्लाह के बाजू में आके खड़े हो जाते और सलाम करके तमाम साहबा से कहते ओ साहबा सुनो, और कुछ सरकार की तरफ तवज्जो फरमाते कहते या रसूलुल्लाह आप आए बहारे आई, आप आए करम आया, आप आए इनकलाब आया। या रसूलुल्लाह जब तक आप नहीं आए थे हम अपनी जानों पे सुनकर बैठे थे। या रसूलुल्लाह जब तक आप नहीं आए थे हम नंगे खाने काबा का तवाफ करते। या रसूलुल्लाह जब तक आप नहीं आए थे हमारे अंदर शराब आम थी। या रसूलुल्लाह जब तक आप नहीं आए थे हमारे अंदर बुराइयों का समंदर बह चुका था। आप आए करम आया। साहबा करम एक के बाद एक सब बयान करते जा रहे। इतने में एक सहाबी हजरत आसिम खड़े हुए, कहने लगे या रसूलुल्लाह इजाजत हो तो मैं भी आपका कसीदा पढ़ना चाहता हूँ। आप इजाजत दे तो मैं भी कसीदा पढ़ना चाहता हूँ। कहा आसिम पढ़ो। हजरत आसिम खड़े हो गए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जाने आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह। कहा आसिम क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह जब तक आप ना आए थे करम ना आया था, आप ना आए थे रहमत ना मिली थी, आप आए बहारे आई, आप आए करम आया, आप आए इंसानियत का सबब मिला। कहा या रसूलुल्लाह और उन्होंने तो अपने अपने बारे में बताया, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। या रसूलुल्लाह जब तक आप नहीं आए थे मैं बहुत बड़ा जालिम था, मैं बहुत जहालत का मारा हुआ था। या रसूलुल्लाह मेरी जिंदगी में शराब आम थी, और जब मेरी शादी हुई या रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तीन बेटियां अता फरमाई थी, लेकिन ज़माने जहालत की वजह से या रसूलुल्लाह मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटियों को ज़मीन में दफन किया और उनको जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया।
तीन औलादें होने के बाद मैं और मेरी बीवी दोनों नाउमीद हो गई थी या रसूल अल्लाह। फिर कई साल गुजर गए, कई मुद्दत गुजर गई, औलाद का तसव्वुर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक दिन मेरी बीवी मेरे करीब आकर के कहती है, ए आसिम अल्लाह का शुक्र है, करम है कि हम फिर उम्मीद से है या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने फिर एक मरतबा मेरी बीवी के पेट में एक औलाद अता फरमाई। हम फिर उम्मीद हो गए थे कि अब की बार तो लड़का पैदा होगा, लेकिन या रसूल अल्लाह उसकी विलादत के लिए अभी वक्त था कि इतने में मुझे एक सफर करना पड़ा और एक सफर मेरे ऊपर आ पड़ा। 3 दिन की मसाफत का वो सफर था। मैंने अपनी बीवी से कहा, एक लड़ी के हयात में सफर पे जा रहा हूँ, तुझे वसीयत और नसीहत करके जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा और 3 दिन के बाद लौट के आऊंगा। अगर तुझे लड़का होगा तो उसका नाम ना रखना, मैं आकर के उसका नाम रखूंगा, उसका बाबू मैं उसका नाम रखूंगा और अच्छे से उसकी निगहबानी और उसकी हिफाजत करना। और या रसूल अल्लाह मैंने इतना कहकर खामोश न बैठा, फिर पलट कर मैंने ये भी कहा, अगर बेटी हो तो उसको दस्तूर के मुताबिक जिंदा दफन कर देना, उसको उसत को जमीन पर ना रखना, जमीन के अंदर दफन कर देना। आप कह रहे होंगे मौलाना आखिर इस बच्ची को दफन कर देने के बारे में क्यों कहा उस सहाबी रसूल ने? तो सुनो, मक्के का दस्तूर था, जब भी लड़की पैदा होती उसको नहुसत और शैतानियत समझा जाता था, इसीलिए उसको जमीन में दफन कर दिया, उसकी पालनहारी और उसकी परवरिश नहीं की जाती। हजरत यासीन कहते या रसूल अल्लाह, मैं ये कह कर के वहां से रवाना हुआ। चंद घंटों के बाद में मेरी बीवी के शिकम में दर्द शुरू हुआ और उसकी विलादत, उस बच्चे की विलादत हुई और क्या देखती है कि वो दुनिया में आने वाला कोई लड़का नहीं। इस बार भी अल्लाह ने हमको लड़की अता फरमाई। मेरी बीवी ने उस लड़की को देखा, उस वक्त तो या रसूलल्लाह मैं नहीं था, लेकिन वो उसको देखी और उसने देखकर तो उससे प्यार करना शुरू कर दिया। या रसूलल्लाह उसका दिल गवारा ना किया। अब तक तो उसने अपनी 3 औलादों को जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन ये 4थी औलाद थी, उसका दिल गवारा ना किया। या रसूलल्लाह उसने उसको पाला। 3 दिन के बाद जब मैं पलट के आने की खबर उसको मिली तो उसने उसी बच्ची को पड़ोसन के पास भेज दिया और चंद दिन तक वो वहीं पर पलती रही। या रसूलल्लाह 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, बल्कि मेरी बीवी ने मुझसे कमो पेट 6 साल तक इस बात को छुपाया। और फिर एक दिन आकर के मुझसे कहती, ए मेरे शौहरे नामदार है आसिफ, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर तू गुस्सा ना करे, तू मुझे मारे और डांटे ना, मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी जब मुझसे कह रही थी उसकी आंखों में हसरत थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। या रसूल अल्लाह, मैंने उसकी बात को टाल ना सका। मैंने कहा ठीक है बाल लूंगा, बता क्या बात बताना चाहती है। उसने कहा कि जब तुम गए थे तो उस वक्त लड़की पैदा हुई और मैंने उसको दफन नहीं किया था, वो लड़की को मैंने अभी तक जिंदा रखा और वो परवरिश वाली आज वो 6 साल की हो चुकी है। या रसूल अल्लाह, जब उसने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको मारना चाहा, लेकिन थी तो मेरी ही बीवी, तो मेरे दिल ने पुकार के कहा कैसे मारूं, अगर मारूंगा तो टूट जाएगी, इतने बरस की जिंदगी गुजारी नाउमीद हो जाएगी, इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने मारा तो नहीं। कहा उस लड़की को बुला के ला। उसने आवाज दी तो वो बच्ची दौड़ी दौड़ी आ रही थी। या रसूल अल्लाह, मेरी नजर जब पहली मर्तबा मेरी बेटी पे पड़ी, 6 साल की मेरी बेटी थी, जिसका चेहरा मेरे चेहरे की तरह था, जिसका चलने का लहजा मेरी तरह था, जिसका बोलने का ढंग मेरी तरह था। या रसूलल्लाह, मुझे भी थोड़ी देर के लिए प्यार आया, मैंने भी उसको कलेजे से लगा लिया, मैंने उसको छुआ, उसको चमेटा, कहा मैं तेरा बाप हूँ। लेकिन या रसूलल्लाह, मैंने सोचा कि पाल लेंगे, लेकिन जमाने की हालत थी, आप नहीं आए थे ना या रसूलल्लाह, आप नहीं आए थे ना हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। या रसूलल्लाह, जब जमाने में फिरता तो लोग जो झुककर मुझे सलाम करते थे, अब मुझसे देखकर चेहरा मोड़ लेते, कहते आसिम ने अपने घर में शैतानियत पाली है, आसिम ने अपने घर में नहुसत पाली है, आसिम ने अपने घर में शैतानियत पाली है, इससे कोई कलाम और सलाम ना करे। या रसूल अल्लाह, जब मैंने जमाने का ये टॉर्चर देखा तो मैं सहन ना कर सका। एक दिन मैं घर में आया, देखा तो मेरी बच्ची मेरी बीवी के सीने पे सर रख के सो रही थी। मैंने कहा ये तेरी बेटी है या मेरी बेटी? तो मेरी बीवी ने कहा दोनों की है। कहा किसका हक उस पर ज्यादा? कहा दोनों का हक बराबर है। कहा आज की रात ये मेरे पास सोएगी, रोज तो तेरे पास सोती है। ये कह करके मैंने उसको अपने पास बुला लिया। या रसूल अल्लाह, पहली मर्तबा मेरी बेटी मेरे बाजू पर आकर सोई है और कभी वो मेरी दाढ़ी में उंगलियां करती थी, कभी मेरे होठों को चुम रही थी, कभी वो पेशानी को चुम रही थी। या रसूल अल्लाह, बड़ा प्यार मैंने किया और जो 3 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया था वो भी मुझे याद आ रही थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, जमाने का टॉर्चर था, जमाने की हालत का वो जो है दबदबा मेरे ऊपर था, मैं उसमें फंस चुका था। या रसूल अल्लाह, रात के 3 हिस्से के गुजरने का इंतजार किया, तब 3 रात हुई तो या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को उठाया और उठाकर मक्के, या रसूल अल्लाह, मैं गलियों में भागने लगा। हाँ या रसूल अल्लाह, मक्के की यही गलियां थी
इन्हीं गलियों में मैंने अपनी बच्ची को लेके भागा। तो भाग रहा था, पत्थर आकर ठोकर खाकर गिर गया, बच्ची उड़ गई। तो कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा के काम से जा रहे। तो कहा अम्मी अपनी अम्मी को साथ नहीं ले जाएंगे। कहा हम दोनों का काम है। या रसूल अल्लाह, ये कहकर मैंने अपनी बच्ची को उठाना चाहा, लेकिन जब मेरे जिस्म पे मिट्टी लग गई थी तो मेरी बेटी अपने हाथों से मेरे जिस्म से मिट्टी साफ कर रही थी। मेरे जिस्म से मिट्टी साफ कर रही थी। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे बड़ा प्यार करती, मेरे दामन पे मिट्टी भी उसको गवारा ना था, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर भी मैंने उसको जबरदस्ती कर कर उठाया और ले जाकर के कब्रिस्तान में बिठाया। यही मक्के का कब्रिस्तान था या रसूल अल्लाह। मैं रात के तिहाई हिस्से में खोद रहा था, मेरे जिस्म से बहुत पसीना निकल रहा था। मेरी बच्ची ने देखा बाबा को पसीना निकल रहा, तो उसने अपने नन्हे हाथों से अपनी कब्र खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे रहम ना आया। मैंने उसको पकड़ करके धक्का दिया और कब्र में ढकल कर मिट्टी डालना शुरू किया, क्योंकि 6 साल की हो चुकी थी। मिट्टी के ऊपर आ जाती, मसल मसल कर ऊपर आ जाती और कहती बाबा मेरा क्या कसूर था, मुझे मार रहे हो, मैंने क्या गलती की, मुझे सजा दे रहे हो। लेकिन या रसूल अल्लाह, वो बार बार आवाज देती, मुझे डर हो गया कि कहीं इसकी अम्मी ना आ जाए, कहीं जमाने वाले ना आ जाए। इसीलिए रसूल अल्लाह बाजू बड़ा बड़ा पत्थर मैंने उठाकर उसके चेहरे पे मार दिया। वो चेहरा जो मेरे चेहरे की तरह था या रसूल अल्लाह, मैंने मार दिया और उसने एक आह खींची। कहा अब्बू मेरा क्या कसूर था अब्बू, जो तुमने मुझे मार डाला। लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने सब्र रखी, मैंने मिट्टी डालकर जल्दी से बाहर रवाना हो गया। या रसूल अल्लाह, ये आसिम ने अपने हाथ से अपनी 4 बेटियों को जमीन में जिंदा दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे। ये वाक़या हज़रत आसिम जिस मस्जिद में बयान कर रहे थे, सारे सहाबा के आंखों से आंसू के कतरे इतने बह गए, पूरी दाढ़ी तर हो गई और दामन तर हो गया। खुद रसूल अल्लाह हिचकियां ले लेकर रोने लगे और उठकर खड़े हो गए, कहने लगे आसिफ बैठ जा, आसिफ तू बैठ जा। और उठकर के खड़े होकर कहने लगे ऐ जमाने वाले सुनो, जिसके घर में एक लड़की पैदा हो और उसके पैदा होने पर उसका बाप खुशी मनाए, तो कल जन्नत में मैं और उसका बाप दोनों 2 उंगलियों की तरह आस पास रहे। किसने जमाने में इनकलाब किया, जमाने वाले बताओ। जो लोग अपनी माँ के साथ जिना करते थे, किसने बताया जमाने में आके जवानों को कि कहा जन्नत तो है, पर जन्नत सारी समेट कर मैंने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे यानी वो मदरसों में, खानकाहों में और स्कूलों में, कॉलेजों में अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात को पढ़ा तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। पर ये नहीं बताते हो कि इस माँ को ये मकाम किसने दिया। ये मकाम दिलाने वाले हमारे मुस्तफा हैं, मकाम दिलाने वाले हमारे नबी है। तो बोलो इस नबी का एहसान हम पर नहीं है? अरे बोलो जोर से बोलो। हमारे नबी का एहसान हम क्या ऐसे चुकाएंगे? फजर की नमाज छोड़कर एहसान चुकाओगे? गलियों में आवारा गर्दी कर नबी का एहसान चुकाओगे? चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर नबी का एहसान चुकाओगे? अपनी बीवी में जुल्म कर नबी का एहसान चुकाओगे? नबी का एहसान नहीं है, नबी की एहसान फरामोशी है। तो मीलाद मुस्तफ़ा में आने वालों, ये पैगाम लेके उठो। नबी का सच्चा गुलाम वही है जो नबी के एहसानात को याद रखे, नबी की तालीमात पे अमल करे। नबी का आशिक वो नहीं जो फजर की नमाज छोड़कर रातों में जुलूस में फिरा करे। नबी का गुलाम वो नहीं है जो कुरान की तालीम से दूर है। नबी का गुलाम वो है जिसकी ज़बान पे कम से कम दिन में 1 मरतबा कुरान जारी है। नबी का गुलाम वो है जो दिन में कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़े। नबी का गुलाम वो है जिसके हाथ, पैर, दिल और ज़बान से आगे का मोमिन पाक रह जाए। हर हम पानी का नल खुला तो नल, तू कहीं को भरी, मैं पहले भरती, तेरा बर्तन तू ले जा, मेरे घर के सामने गाड़ी कहीं को रखा रहे भाई, तू निकल जा, हटा गाड़ी हटा। क्या देख रहा रे घूर के, क्या कर रहा रे, किधर जा रहे हमारे नौजवान बता दो। अजीजों, हुल्लड़बाजी यहीं पर, चालबाजी यहीं पर, दिमाग शिमाग सब यहीं पर। खबर में पहुंचने के बाद कोई हुल्लड़बाजी नहीं चलने वाली, कोई अकल वकल चलने वाली नहीं, सब पे ताला डाल दिया जाए, उफल। फिर वहाँ जो होगा बस तमाशाई बने रहोगे, देखा जाएगा। याद रखो
دیکھنا قبر میں نہیں ہے، دیکھنا زمین پر ہے. تو کہتے ہیں کل سے دیکھیں، کل دیکھ لیں، جمعے کو دیکھ لیں. کیا دیکھو گے؟ قبر میں ڈال دی جاؤ گے تب دیکھو گے، کفن میں لپٹ دی جاؤ گے تب دیکھو گے، امام صاحب ہاتھ پیر باندھ کر کھڑے ہو کر تجھ پہ نماز پڑھو گے تب دیکھو گے. کب دیکھو گے؟ تمہارے لاشے پہ آس پاس کے پڑوس آ کر کے چیخ چیخ کے رو رہے ہو تب دیکھو گے. یہ دیکھنا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا. دیکھنا جو کچھ ہے اپنی نگاہوں سے زمین پر رہ کر کے دیکھو. تو بولو انشاءاللہ کل سے نمازوں کی پابندی کریں گے، خود سے پہل کر کر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور مرے دم تک سچے غلام مصطفیٰ بنے رہیں گے، نبی کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ. غلام ہے، غلام ہے، نبی کے غلام ہے، اور غلامی نبی میں موت بھی قبول ہے. یہ جوان کا نعرہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جستا غلام کی زبان پر ہے. تو غلامی رسول ہے نا. ہاں رسول کے غلام کون کون ہے بیٹا؟ تھوڑے دینے میں لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، غلام غلام بول کے جا رہے ہیں. غلام تھوڑی امتی ہے. ارے امتی بھی ہے، غلام امتی ہے. کسی نے کہا کہ جب تک بلال صرف امتی تھا تو پڑا تھا کسی کی دہلیز پر، جب سے زبان پہ نبی نبی کرنے لگا اٹھا کر خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا گیا. غلامی رسول بہت کچھ دلا دیتی ہے. کیا مولانا ایسے ہی ہے نا؟ تو غلام رسول بنو، غلام رسول. امتی تو ویسے ہی بن جاؤ گے صدقے غلامی رسول. تو یہی ساری پیغام میں آپ کے گوشوالے کرنے کے لیے آیا. اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ اتنی بڑی عزت کا فرمایا آپ کے سامنے نبی کی میلاد میں اپنی زبان سے پڑھ سکا. پھر زندگی باقی رہے گی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پھر انشاءاللہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی آگے کی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ سننے سے اللہ مجھ کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہم سب کو نبی کا وفادار، اہل بیت کا وفادار، صحابہ کا وفادار اور تمام انبیاء کرام کا وفادار رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اہل سنت سے وابستہ رکھ اور ان کے اندر بھی عشق رسول عطا فرما. رما علی نندل بلا خوب کی سیر چمن گلشن ارشاد رہے، پاک بات جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رما علی نندل بلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر.